friends, today we will discuss the function which are continuous and which are discontinuous. इससे पहले हम बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन कर चुके हैं, जिससे खास करके जो फंक्शन डिफाइन हुआ था f(x = x), जिसको आप आइडेंटिटी फंक्शन कहते थे, और जिस फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, जिसको कांस्टेंट फंक्शन आप कहते थे, और द फंक्शन mod x, जिसको आप मॉड्यूलसन फंक्शन कहते थे, द फंक्शन a⁴x, जिसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते थे, और इसका इनवर्स लॉगरिथम फंक्शन. All functions are continuous functions. Even if you say f(x) = sin x, f(x) = cos x, sin x is this one, cos x is this one, and f(x) = log x. Log x means this type of graphs. Or you may say the polynomial function. So these all functions are continuous function. And beside this, we have defined the greatest integer function, the signum function, and the function that is your partial fractional function. ये तीनों फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. अब तक जो हम लोग लिमिट के अनुसार पढ़े हैं, क्योंकि ये तीनों फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब अलग अलग था. इसे जीरो पे अगर इसको हम डिफाइन करते थे तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट -1 था, राइट हैंड लिमिट +1 था. और किसी भी इंटीजर पे इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट था, दैट इज a-1, अगर a कोई इंटीजर है, और राइट हैंड लिमिट इसका a था. आप देख लीजिएगा लिमिट के जो पार्ट्स है, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये आपका था पार्शियल फ्रैक्शनल फंक्शन. इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 रहता था और राइट हैंड लिमिट 0. सो अब तक हम यही पढ़ते आए हैं. जो फंक्शन whose left hand limit, right hand limits are not equal, the function are discontinuous function. So there is identity function, constant function, modulus function, exponential function, sine function, cosine function, logarithm function, and this is polynomial function. These functions are continuous function. अब तक हम लोग जितना पढ़े हैं, उसी तरह से अगर हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में tan, cot, sec, cosec, ये 4 फंक्शन, these फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन समवेयर. एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ था वो इस तरह से था. सो दिस फंक्शन इज discontinuous on integers, but when you see the function is continuous in between two consecutive integers. So this is continuous from 1 to 2, this is continuous from 2 to 3, but this is discontinuous at 1, at 2, and at 3. This is the graph of greatest integer function. Similarly, this is your graph of signum function. So this function is discontinuous at x = 0 only, but when you take at the point when x is greater than 0, the function is continuous function. Similarly, when you take x negative, the function is continuous function. So this function, that is signum function, is a discontinuous function only at x = 0. So how we define the continuous function? So definition, let
y is equal to fx be a function, then the function is continuous function when, or you may say if and only if, number one, limit x tends to a, fa is equal to l, this should not be equal to fa, माने लिमिटिंग का कोई वैल्यू निकलना चाहिए। और दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, सिंपल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज व्हेन द लिमिट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, व्हेन द लिमिट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, मतलब दैट इज व्हाट, दैट इज limit x tends to a minus fx, this is called left hand limit, must be is equal to limit x tends to a plus fx, this is called your left hand limit, this is called your right hand limit। एक लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उस लिमिट का किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें एक बात और हम समझाना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए दिस इज अ लाइन, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए है, यहाँ पर सपोज h इज वेरी स्मॉल नंबर, h इज पॉजिटिव, सो लेफ्ट टू दिस पॉइंट a, दैट इज a माइनस h, और इधर मेरे से a प्लस h, this h is any positive number and very small, very small number, ये बहुत छोटा नंबर होगा। तो यहाँ जो हम लिखते हैं a माइनस h, a प्लस h, दिस इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ a, नेबरहुड पड़ोसी, नेबरहुड ऑफ a। तो जब आप यहां पे लिमिट लेंगे दैट इज, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज नॉट डिनोटेड एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, व्हेन ए अप्रोचिंग टू 0, दिस इज कॉल्ड योर लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। सो ये जो राइट हैंड लिमिट, इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड अ राइट हैंड लिमिट। तो जनरली हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे इसको लेके बनाएंगे, फिर भी जब ये फील्ड में आ चुका है तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख ले, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, दीज टू सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ कैलकुलस। इसको जरूर आप बढ़िया से पढ़िएगा, और मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी लिमिट का पार्ट या फंक्शन का पार्ट, रिलेशन का पार्ट बनाया जा रहा है उसको आप ध्यान पूर्वक जरूर पढ़िए, सारा एपिसोड को पढ़िए, दिस इज फॉर यू ओनली। सो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन satisfying f x plus y is equal to fx into fy, so that the function is continuous function for all x belongs to R
if it is continuous at x is equal to 1। तो ये एक क्वेश्चन है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। तो जैसे आप जानते हैं, a function is continuous when its left hand limit and right hand limit both are equal. So let x is equal to 1। so इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 fx, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 f क्या लेंगे 1 माइनस 0 या h माइनस 1, क्योंकि हम लोग 1 माइनस h लेना होगा, 1 माइनस h, क्योंकि आप 1 पे डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ अगर 1 होगा तो यहाँ 1 माइनस h होगा, यहाँ 1 प्लस h होगा। तो यहाँ जो भी लिमिट लेंगे वो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा और यहाँ जो लिमिट लेंगे वो राइट हैंड लिमिट में आएगा। इस डेफिनेशन के अनुसार इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, f1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, f1 इंटू f माइनस h, दिस इज f1 इंटू f0। सिमिलरली जो राइट हैंड लिमिट होगा, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, f, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं होगा, सो बेटर टू राइट अपवर्ड, यहाँ पर लिखा जाए। राइट हैंड लिमिट, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 fx, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह हम लिखेंगे 1 प्लस h, और ये होगा आपका f1 इंटू लिमिट लिख दिया जाए h टेंस टू 0 h, दिस इज योर f1 इंटू f0। अब फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy। तो ले लिया जाए कुछ पॉइंट, let x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो जब यहां बैठाएंगे तो f0 इज इक्वल टू f0 का स्क्वायर। सो f0 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि f0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो f0 इज इक्वल टू 1 और f0 इज इक्वल टू 0, दो वैल्यू आ रहा है। तो इसको ले लिया जाए, f0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम लोग यहाँ पर लिए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका वैल्यू 0 है, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा दिस इज 0, और जो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर है, सो राइट हैंड लिमिट जो होगा दिस इज ऑल्सो 0। सो वी सी द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। So the given function is continuous at x is equal to 1। अब हमको चेक करना है, दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x is equal to a belongs to r। नेक्स्ट स्टेप में we have to show that the function is continuous at x is equal to a belongs to r। तो पहले ये कंडीशन था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब ये फंक्शन x is equal to 1 पे कंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम ये देख चुके हैं कि यहाँ 1 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है। इसको हम लोग ऐसे लिखे थे, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अब हम इस 1 के जगह रखेंगे a, तो यहां पर a रख दिया जाए और यहां पर भी a रख दिया जाए, दिस इज a, दिस इज a। सो नेचुरली हम लोग पाए थे f0 इज इक्वल टू 0, यहां पर भी f0 आ रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 होगा और राइट हैंड लिमिट भी 0 होगा।
So this function is continuous at x is equal to a belongs to R, when the function is continuous at x is equal to 1. थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, इसमें परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है. ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे क्योंकि फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई. तो इसको तोड़ सकते हैं एफ ए इंटू इतना, और एफ जीरो का वैल्यू हम लोग जीरो ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो इस तरह से आप इसको बनाएंगे. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस the function, continuity of the function fx is equal to 2x square plus 1 when x is less than 2. कितना होगा बेटा, यहाँ पर 4 8 हो गया, और इसको लिख दिया जाए 4x plus 1 when x is greater than 2 and x is equal to 2. So this is very simple question, और इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं. सो सॉल्यूशन में चलेंगे, लिखेंगे when x is less than 2. So this implies what? This is left hand limit. This is limit x tends to 2 minus fx. और जब x लेस देन 2 था तो फंक्शन डिफाइंड है 2x स्क्वायर प्लस 1, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1. so 2 into 2 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 9. फिर लिखेंगे when x is greater than 2. so this is your राइट हैंड लिमिट, और इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और fx के जगह क्या लिखा जाए. सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जब x ग्रेटर देन 2 है तो वैल्यू है आपका 4x प्लस 1, दिस इज 4x प्लस 1. सो दिस इज योर 4 इंटू 2 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 9. सो लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limits are equal, so the function is continuous at x is equal to 2. लिखेंगे since left hand limit is equal to right hand limit, so is equal to 9, so the function is continuous at x is equal to 2. इस तरह से इसको हम प्रूफ करते हैं. एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to sin greatest integer function divided by greatest integer function when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. This is one type of question. इस टाइप का क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाते हैं. देखिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है इसमें राइटिंग पावर को देखा जाता है. आप किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप किस तरह से उसको लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, और लिखने में ही इसमें नंबर होता है. तो सॉल्यूशन में चलेंगे. व्हेन x is not equal to 0, x is not equal to 0, that is either x is less than 0 or x is greater than 0. फिर लिखेंगे when x is less than 0, तो इसमें ले लेफ्ट हैंड लिमिट. so this is limit x tends to 0 minus fx, और माइनस में इसको लिखेंगे लिमिट x tends to 0 minus sin greatest integer function by greatest integer function.
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो ये है। तो 0 के जब आप लेफ्ट साइड में आते हो तो इसका रिजल्ट होता है -1। तो इसमें होगा साइन -1 डिवाइडेड बाय -1, दिस इज योर साइन 1। लेकिन जब आप इसको लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो ये होगा आपका राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट देने से ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन दिस बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए कि जो ही आप 0 के दाहिने तरफ आते हो तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाता है, साइन 0/0। तो नेचुरली 0/0 आ गया, तब ये 0/0 होगा तो इसका लिमिट हो जाएगा 1। फॉर्मूला साइन एक्स लिमिट ऑफ x टेंस लिमिट ऑफ साइन x by x एज x टेंस टू 0, दैट इज योर 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आ रहा है साइन 1, राइट हैंड लिमिट आ गया +1। सो यहीं से पता लग गया द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसमें एक बात और दिया गया, व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की जगह 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए। जब x 0 होने से fx का वैल्यू 0 है तो ये हो गया 0। तो ये और ये तीनों अलग अलग है। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल हो रहा है, लेकिन एट दैट पॉइंट, जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट मान लीजिए साइन 1 है, खुदा ना खास अगर राइट हैंड लिमिट भी अगर साइन 1 आ जाता तो नियम के अनुसार दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए था। लेकिन उस केस में भी आपको देखना होगा कि x इजिकल टू 0 में क्या डिफाइंड है। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम होने के बाद भी अगर इसका वैल्यू अलग हो रहा है तो भी आप लिखिएगा द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं यहां पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x² प्लस 1 when x is greater than 2 और 2x when x is equal to 2 और 2x plus 1 when x is less than, यहाँ पर लेस देन कीजिए, यहाँ पर ग्रेटर देन 2 कीजिए। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x is equal to 2। तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो यहाँ पर होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 2। तो यहाँ पर जो fx आएगा दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1, तो दिस इज 5, 4 प्लस 1 5। अब फिर लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तब आएगा राइट हैंड लिमिट, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। और यहाँ पर जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 दिस इज ऑल्सो 5। तो नियम के अनुसार अगर आप चलोगे तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। बट व्हेन यू टेक x इज इक्वल टू 2 पे आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज 2x, सो दिस इज योर 4। सो ये तीनों का लिमिट इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफिकल एटीट्यूड देख लिया जाए। ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका ग्राफ इस तरह से है, यहाँ दिस इज योर 2 5
और राइट हैंड साइड में ये स्ट्रेट लाइन है, ये चला गया ऐसे. दिस इज योर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. लेकिन 2 पे यहाँ पे डिफाइन करते हो तो ये पॉइंट आता है अगर 2, 4. तो ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट अलग अलग है, अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है x इज इक्वल टू 2 पे. इसलिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एक तरह का ये भी क्वेश्चन बनता है, फाइंड द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b. क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a and b the function fx is equal to 1 plus mod sin x to the power a by mod sin x when x is less than 0, and this is b when x is equal to 0, and e to the power tan 3x divided by tan 2x when x is greater than 0 is a continuous function. Dear students, this is very important question. इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं. तो सॉल्यूशन में चलेंगे. when x is less than 0, तो इसको लेते हैं हम लोग क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स. तो लेस देन में फंक्शन क्या डिफाइंड है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस मॉड साइन एक्स ऑल टू द पावर a बाई मॉड साइन एक्स. पिछले क्लास में आप देखे हैं कि इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो इसका वैल्यू आना चाहिए e टू द पावर a. So this is one value. Now second one, when x is equal to 0, so limit x tends to 0 fx, this is limit x tends to 0 b, so this value is b, another value. Or when x is greater than 0, हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट. So this is limit x tends to 0 plus fx. Now what is the value of fx? This one is the value of fx. So this is your limit x tends to 0 e to the power tan 3x divided by tan 2x. So naturally this is your e to the power 3 by 2. So this is, so यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया e टू द पावर a, राइट हैंड लिमिट हो गया e टू द पावर 3 by 2, और एट x is equal to 0 दिस इज द वैल्यू b. सो यहाँ लिखेंगे, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन e to the power a is equal to b is equal to e to the power 3 by 2. So what is the result now? So a is equal to 3 by 2 and b is equal to कितना, e to the power 3 by 2. This is the answer. एक क्वेश्चन और हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे, which is a very important question, कि at what point the given function will be a continuous function. हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में रिलेशन और फंक्शन में वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड व्हाट इज ए डोमेन. तो किसी भी फंक्शन का डोमेन जो एग्जिस्ट होता है, वहां पर फंक्शन को हम चेक करते हैं डोमेन मिल रहा है कि नहीं. तो डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. ये जरूरी भी नहीं है कि डोमेन में फंक्शन, वह बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल डोमेन जहां पर होगा वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस रहना चाहिए.
क्योंकि फॉर ऑल एक्स इफ देयर आर एग्जिस्टिंग द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स आर कॉल्ड डोमेन। सो क्वेश्चन नंबर वो कितना था 6, फाइंड द पॉइंट वेयर द फंक्शन, एक फंक्शन लिखा जाए 3x² + 1 डिवाइडेड बाई 2 sin x - 1 इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में वी जस्ट फाइंड आउट द डोमेन, और जब डोमेन जहां पर होगा फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस होगा। बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा, फिलहाल जो अभी पढ़ाई हो रहा है डोमेन के ऊपर में हम फोकस किए हुए हैं, और आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो डोमेन पे डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं। खैर यहां पर देखिए सॉल्यूशन में आएंगे, लिखेंगे द फंक्शन इज डिफाइंड only when what 2 sin x minus 1 not is equal to 0. So sin x not is equal to 1 by 2. So what is the value of x? This is pi n plus minus 1 to the power n. 1 by 2 होगा pi by 6 के लिए। n क्या होगा यहाँ पर? ये इंटीजर होगा। So x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, यहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। दैट इज व्हाट, इस जगह पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। सो द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू पाई n प्लस माइनस 1 टू द पावर n, दिस इज पाई बाई 6। यहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इसको छोड़ के हर जगह फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। सो ये कंटिन्यूटी का है। एक दो पार्ट्स और बनेंगे कंटिन्यूटी में जो प्योरली मेन और एडवांस को कैरी करेगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट प्योरली सीबीएसई और एनी बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो पहले आप बोर्ड का बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद यही मेन और एडवांस में चलना ही है। प्यारे बच्चों हर एपिसोड को आप देखिए, दिस माय रिक्वेस्ट टू यू। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।